Good morning, students. How are you all? I welcome you to RPS online classes. Today's video is for class 9th and we will discuss the third chapter of book Behive, The Little Girl. Students, this lesson is written by Catherine Mansfield. It's a very nice story which gives you a great message. The story will make you clear. It will make you clear the concept. It will make you able to understand the attitude of the parents. Sometimes when parents take decisions for us, we are not able to understand what kind of decision they have taken. We think from our point of view and they think from their point of view. But when we grow up, when we start reasoning, we find out the reasons behind the decisions taken by our parents. So before we read this story, there are some lines which are before the chapter starts. Let us read them here. Do you feel you know your parents better now? Now means when you are grown up than when you were much younger. There is a difference. We know our parents when we are younger and we know our parents when we are grown up. But there is difference. We know them better when we are grown up. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Some actions upset you. Some of their decisions made you sad. At that time you did not understand because you were kids or you were not that grown up. But now you can understand. This story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. We fear our parents when we are in our childhood, but when we grown up, with the passage of time, we start understanding them. We start understanding their decisions. Sometimes their decisions are very hard. Their harshness we understand when we start growing up actually. So let us read this story and let us find out कि इस स्टोरी में क्या होता है. Before moving ahead, let me make clear the story. In this story there is a girl. The name of the girl is Kezia, and she was beaten by her father. For tearing his speech, and the father beat her with a ruler. अब जो रूलर होता है उसे उसकी पिटाई कर देते हैं. तो लड़की को लगता है कि पिताजी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत सख्त हैं, भगवान ने पिताजी को किस लिए बनाया है, शी थिंक्स. दूसरा, शी कंपेयर्स अ फादर विद मिस्टर मैकडोनल्ड, जो कि पड़ोस में रहते हैं उनके, एंड ही इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, जो कि अपने बच्चों के साथ खेलता भी है. तो शी कंपेयर्स हर फादर विद मिस्टर मैकडोनल्ड एक्चुअली. तो लेट अस सी कि कैसे उस बच्चे की जो फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज होती हैं, कैसे उसका डर जो है, क्योंकि जब भी उनके पिताजी उसके पास आते थे तो वो कांपने लगती थी, वो हकलाने लगती थी, स्टटर करने लगती थी, और जो है कैसे फिर एट द एंड क्या होता है, उनकी फीलिंग जो है वो चेंज हो जाती है. तो लेट अस सी, इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है. टू द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared. To the little girl, उस छोटी बच्ची के लिए he was a figure, वो एक ऐसी फिगर थी to be feared, केवल डरावने थे वो उस लड़की के लिए, and avoided, वो उसको अवॉइड कर देती फादर को. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Casual kiss मतलब एक रूटीन था, वो उसके रूम में आते थे और एक जो है जाते वक्त गुड बाय किस उसको देते थे. To which she responded with good bye father, और वो गुड बाय कहती थी. And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब उसको वो ग्लैड कैसे होती थी, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ यानी खुश होती थी. वो कब होती थी, जब उसको सुनाई देती थी पिताजी की जो गाड़ी है, कैरेज है, वो उसकी आवाज़ जो है फेंट हो जाती है. फेंट यानी कि जब धीमी सुनाई देगी, फिर और धीमी हो जाएगी, फिर और धीमी हो जाएगी, यानी गाड़ी की आवाज़ कम होती जा रही है क्योंकि गाड़ी दूर जा रही है. तो फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यानी जब पिताजी उसके घर से जाते थे
तो उसको बड़ा रिलीफ मिलता था, क्योंकि वो पिताजी से डरती थी इस वजह से। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Staircase के पास खड़ी होके, सीढ़ियों के पास खड़ी होके उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी। पिताजी ऑर्डर देते थे, क्या कहते थे कि bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? पेपर अभी आया नहीं है क्या? Mother, go and see if my paper is out there. जाके देखो मेरा पेपर वहाँ है कि नहीं. And bring me my slippers. मेरी चप्पल्स लेके आओ। तो इस तरीके से केजिया जब अपने पिताजी की इतनी सारी बातें सुनती तो उसको लगता कि देर इज़ नो लव इन फादर, फादर डजंट लव हर, ही ओनली स्कोल्ड्स, उसको ऐसा लगता था, तो वो उसे डरती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर भी बुलाती थी केजिया को कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, पिताजी के बूट्स निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो धीरे धीरे नीचे आती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जो ना धीरे धीरे जाती हॉल तक। धीरे धीरे क्यों जाते? क्योंकि उनको पिताजी से डर लगता था। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, है ना, दरवाजे को खोलती वो। बाय द टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और अब तक जो ना वो चश्मे पहन चुके होते थे पिताजी, और चश्मे के ऊपर से जब वो अपनी डॉटर को देखते थे तो लिटिल गर्ल को लगता था वो बड़ा टेरिफाइंग लगता था, डरावना लगता था, उनकी नज़र बड़ी डरावनी लगती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दम आउटसाइड, जल्दी से ये शूज़ वहाँ से निकालो और जो है बाहर बाहर इनको लेके आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या पूरे दिन आप एक गुड गर्ल थी? यानी अब जब शाम को पिताजी घर आके पूछते हैं कि तूने कोई शरारत तो नहीं की पूरे दिन, तुम अच्छे बच्चे की तरह रहे कि नहीं रहे, तो ऐसे पूछते थे कि हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तो वो हकला के कहते कि आई डोंट नो फादर। तो क्यों हकलाती थी यहाँ पे, स्टटर करती थी क्योंकि पिताजी से वो डरती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। फादर, यू डोंट नो, नकल सी करते वो, यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम ऐसे हकलाओगे मदर विल हैव टू टेक इट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, किसी और के साथ वो कभी स्टटरिंग नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, मतलब उसकी स्टटरिंग एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, छोड़ चुकी थी। बट विद ओनली फादर, लेकिन पिताजी के साथ वो हमेशा हकलाती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, एक्चुअली वो बहुत जो ना प्रॉपरली वर्ड्स को बोलने की कोशिश करती थी, बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी, इस वजह से क्या होता था कि वो हकलाती थी। और ये किसकी वजह से होता था? डर की वजह से, फियर की वजह से होता था। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट, इतनी उदास अनहैप्पी क्यों लग रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी आप इसको जितना मासूम बनना मत सिखाओ। मदर से कहते, ग्रैंड मदर उसकी अपनी मदर से उनके पिताजी कहते कि आई विश, मैं ऐसे विश करता हूँ काश, यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी इतनी दुखी सी है ये, चीयरफुल नहीं है। जैसे कि ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड होता है जब आदमी बिल्कुल सुसाइड करने के कगार पे होता है, यानी इतना दुखी हो जाता है, तो बच्ची दुखी सी लगती थी, पिताजी को लगता था कि ये बहुत दुखी है जब उसके पास आती है, इसलिए वो उसको कहते थे। Here Kezia carry my teacup back, टीकप लेके आओ to the table carefully, तो वो उनको जब भी कहते और उसको बोलते तो उसको डर लगता है। He was so big, डॉक्टर के लिए क्या था? He was so big, बहुत बड़े थे। His hands and his neck, हाथ और उसकी गर्दन बहुत बड़ी लगती, स्पेशली his mouth. When he yawned, जब वो यॉनिंग करते थे, उबासी लेते थे, तो उसको लगता था कि उसका बहुत बड़ा मुंह है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, यानी पिताजी के बारे में जब मैं सोचती थी अकेले होके तो उसको लगता था वो किसी जाइंट के बारे में। जाइंट क्या होता है? बड़ा ह्यूज पर्सन होता है, जैसे दैत्य होता है, जैसे राक्षस होता है, इस तरीके से उसको लगता था कि बहुत ही जो है क्रूअल पर्सन के बारे में वो सोच रही हैं, जाइंट के बारे में वो सोच रही हैं। ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को जब वो रेस्ट कर रहे होते थे तो उनकी ग्रैंड मदर उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो जाके बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, मदर पढ़ रही होती थी और फादर जो है क्या कर रहे होते थे? सोफ़े के ऊपर
जो ना स्ट्रेस्ड आउट का मतलब होता है लेट लेट के आराम कर रहे होते थे बिल्कुल। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, चेहरे पे उनका रुमाल होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, पैर किस पे होते हैं, कुशन के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो जो ना स्लीप कर रहे होते साउंडली और स्नोरिंग स्नोरिंग कर रहे होते। स्नोरिंग मतलब जो ना खराटे मार रहे होते जब वो, तो स्नोरिंग कर रहे होते यानी कि खराटे मार रहे होते। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देखेंगे कैसे फादर जो है ना, मदर इज़ बिजी विद मैगजीन, फादर इज़ स्लीपिंग। ये हैंकरचीफ उनके मुंह के ऊपर है, पैर उनके कुशन के ऊपर हैं, ठीक है, वो रेस्ट कर रहे होते। जब भी वो संडे को आफ्टरनून में उनके पास जाती तो उसके साथ ऐसा ही होता। तो हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके से बच्ची को शायद वो लव एंड अफेक्शन शायद नहीं मिला जो पेरेंट्स को देना चाहिए, बट समटाइम्स पेरेंट्स लव अस देयर वे, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। काम की थकान की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से दे कैनॉट गिव डिवोट टाइम टू अस, और हमें लगता है कि दे डोंट लव अस। आगे चलते हैं। सी सैट ऑन अ स्टूल, और वहाँ जाके बैठ जाती वो। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम, पिताजी को देखती बड़े ध्यान से। अनटिल ही वॉक अप एंड स्ट्रेच्ड, मतलब अंगड़ाई तोड़ना, उठते और जो ना अंगड़ाई तोड़ के और पूछते उससे, टाइम पूछते। देन लुक्ड एट हर, डोंट स्टे सो केजिया, वो कहते थे कि इतना डरो मत केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ब्राउन आउल की तरह, यानी उल्लू जो होता है ब्राउन, भूरा उल्लू, उसकी तरह तुम लगती हो, क्यों, डर के मारे तुम बिल्कुल ऐसी हो जाती हो। तो फादर उनको कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, उसको एक कोल्ड हो गया एक दिन, तो उसको घर पे ही रहने के लिए बोल दिया गया, यानी स्कूल नहीं भेजा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट द फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, मम्मी ग्रैंड मदर ने क्या कहा, उनके पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, उसको कहा कि एक पिन का कुशन बना, पिन कुशन बना दें वो एक, यानी कि तकिया बनाएं उसके लिए, पिताजी के लिए, किससे, और जो ना येलो सिल्क के कपड़े से जो ना वो बनाए। तो ये काम किसने दिया, ग्रैंड मदर ने उसको दिया। लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से, लेबोरियसली मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से, विद अ डबल कॉटन, कॉटन डबल यूज़ करके, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, तीन साइड उसने स्टिच कर दी। जैसे हम तकिया बनाते हैं, आपको पता है तीन साइड से उसको हमें स्टिच करना पड़ता है, ऐसे सील दिया, फिर ऐसे स्टिच कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब ये फोर्थ साइड तो तब पहले नहीं करते, पहले इसमें कुछ भरते हैं, और जब ये फुल हो जाता है इसको भर देते हैं, तो हम इसको यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं। तो उसने क्या किया, तीन ओर से उसको जो ना सील दिया एक तरीके से, और जो है ना वो देख रही थी कि उसमें क्या भरे। सो विद अ डबल क्वेश्चन द लिटिल स्टिच थ्री साइड्स, बट व्हाट टू फिल इट विद, उसमें भरे क्या, दैट वाज अ क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड देन शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वॉन्डर्ड मतलब पूरा मदर का जो बेडरूम था वो उसने घूम लिया, देख लिया, वहाँ पे ढूंढ रही थी वो उसका कुछ मिल जाए। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, यानी कुछ ऐसा स्क्रैप मिल जाए, स्क्रैप मतलब जो यूज़फुल चीज़ नहीं है, जैसे ऐसे कपड़े चीथड़े कुछ ऐसे मिलें जो उसके अंदर डाल सके वो। ऑन द बेड टेबल, बेड के टेबल के ऊपर क्या दिखा उसको, दैट शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारी शीट्स थी और बड़े ही फाइन पेपर की थी, अच्छे पेपर की। गैदर्ड दैम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू पीसेस, फाड़ के पीसेस में किया। एंड स्टफ्ड हर केस, यानी वो जो कुशन बनाया था उसने उसके अंदर उसको भर दिया। एंड देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और जो चौथी साइड थी उसको भी उसने वहाँ से क्या कर दिया, सी दिया, स्टिच कर दिया, यानी तीन तो पहले ही कर दी थी, फोर्थ भी कर दी उसने, और एक तकिया उसने बना के एज अ गिफ्ट फादर के लिए रख दिया। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा, देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। क्यों क्यों हुआ, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की बहुत एक स्पीच लिखी हुई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो कि उनके अपने ऑफिशियल काम के लिए चाहिए थी, वो क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। रूम्स फॉर सर्च, सारे रूम ढूंढ लिए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स को भी सवाल कर लिए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और पूछा उसे, केजिया आई सपोज डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, पूछा कि मुझे, आई सपोज यानी मेरे हिसाब से आपने तो नहीं देखा होगा कुछ पेपर्स मेरे जो ना रूम में टेबल के ऊपर। तो केजिया ने कहा, ओह यस आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने इनको फाड़ दिया है
एक सरप्राइज़ देने के लिए, पिताजी को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि गिफ्ट बनाने के लिए। What? Screamed mother. Scream मतलब चिल्लाना, चिल्ला पड़ी। Come straight down to the dining room this instant. This instant मतलब अभी के अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. उसको घसीटते वो नीचे लेके आई हाथ पकड़ के, और जहाँ पे फादर जो है ना पेस अप एंड डाउन टू एंड फ्रो होता है, आगे पीछे घूमना, जैसे टेंशन में आदमी इधर जाता है फिर उधर जाता है फिर जाता है फिर जाता है, उसको टू एंड फ्रो बोलते हैं, आगे पीछे घूम रहे थे वो। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और कमर के पीछे उनके हाथ थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने सारी बातें उनको बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द गर्ल। डिड यू डू दैट? पूछा उन्होंने गुस्से में, तुमने ये किया? नो, शी विस्पर्ड। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। क्या कहा? कि जाओ अपने रूम में और वो डैम्ड थिंग मतलब लेके आओ, वो तकिया लेके आओ, जो कुशन बनाया है उसे अभी के अभी लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उसको भेज दिया वो तकिया लाने के लिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द शेडोड रूम, अपने रूम के अंदर लेटी हुई थी। शेडोड रूम मतलब थोड़ी सी छाया थी रूम में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी रोशनी आ रही थी हल्की सी क्योंकि इवनिंग हो रही थी। सैड लिटिल पैटर्न ऑफ फ्लोर का मतलब क्या है कि जो लाइट थी हल्की हल्की, वो खुद दुखी थी। जब खुद दुखी होगा इंसान को तो उसको सब कुछ ऐसा ही लगता है, नीरस लगता है, मतलब उदासी नजर आती चारों तरफ। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, रूलर लेके आए अपने हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, जो बेड क्लॉथ्स थे उनके अंदर अपने हाथ छुपाने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप, उसको बैठाया उसने। ही ऑर्डर्ड, बोला कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए एक ऐसी सज़ा दे देनी चाहिए ताकि एक ही बार में सारा काम हो जाए। नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें उन चीज़ों को टच नहीं करना है। एक ही बार में सिखाना पड़ेगा आज, जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, जो आपको बिलोंग नहीं करती, यानी आपकी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, यानी वो बताने की कोशिश कर रही है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, है ना, बड़े ज़ोर से रूलर लगा, यानी पिताजी ने उसकी पिटाई कर दी। आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद में, वन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, दादी ने उसको जो ना एक शॉल में लपेटा। रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर के अंदर उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, चिपक गई वो, क्लंग मतलब चिपक जाना, दादी की बॉडी से चिपक गई। और उसने सवाल किया दादी से कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, किस लिए पिताजी को भगवान ने बनाया। शी सोब्ड, सुबकने लगी यानी और रोने लगी। हियर इज क्लीन हैंकी, हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, दादी ने कहा कि अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक भूल जाओगी सभी कुछ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, समझाने की पिताजी को आपके, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, यानी बच्चे के मन पे बहुत असर पड़ा, उस वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब भी वो पिताजी को देखती, क्या होता, तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेती, एंड बैक रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, है ना, एक लाल सा मतलब चेहरे के ऊपर जो है उसके गाल लाल लाल हो जाते डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड का मतलब होता है यहाँ पे एक फैमिली मैकडोनल्ड्स की, यानी हमें पता है हर किसी का एक सरनेम होता है। अगर शर्मा है, अगर उसके घर में 6 लोग हैं तो हम सबको इकट्ठे बोलेंगे द शर्माज। तो ऐसे ही द मैकडोनल्ड्स रहते हैं उनके पड़ोस में, उनके पड़ोसी हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, है ना, उनके 5 बच्चे हैं। द मैकडोनल्ड्स के पति पत्नी है, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एक दिन फेंस मतलब जो क्या होता है, एक तरीके से जिसको हम बाड़ कह सकते हैं,
मकान, चार दीवारी कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक फेंस लगी हुई थी, उसमें से गैप था, उस गैप में से वो देखती है। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग, उनको खेलते हुए देखती। सो दैम प्लेइंग मतलब उनको खेलते हुए देखा। क्या खेल रहे थे वो? टैग खेल रहे थे। अभी टैग क्या होता है एक तरीके का गेम होता है पकड़ा पकड़ी का, जिसमें एक दूसरे को पकड़ते हैं। इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माव खेल रहे थे। ऑन हिज शोल्डर्स टू लिटिल गर्ल्स, दोनों कंधे पे दो लड़कियां बैठी थी। हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ही रैन राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल घूम रहे थे वो। द फ्लावर्स बेड्स, फ्लावर्स थे उसके आसपास वो घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे। वन शी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार तो बच्चे ने क्या किया, बॉयज ने क्या किया, होज पाइप जो उनके हाथ में थी पानी की, वो अपने पिताजी के ऊपर सारा पानी उन्होंने डाल दिया। होज का मतलब पाइप होता है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, यानी वो जो पानी उन पे डाला तो वो उसको खुशी खुशी हंस के पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पीट नहीं रहे थे, डांट नहीं रहे थे। देन इट वॉज देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और यहीं पे उसने एक डिसीजन लिया कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं, मेरे भी पिताजी अलग है लेकिन वो अलग तरह के हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, उनकी मदर एक दिन क्या हो गई, इल हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, जो उनकी कुक थी खाना पकाने वाली, एलिस उसके साथ में लिटिल गर्ल छोटी बच्ची अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन तक तो ठीक था क्योंकि दिन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए मैकडोनल्ड्स खेल रहे हैं यहाँ पे, जिसे केजिया देख के सोचती है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेलते। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर होते हैं। कैसे ये दोनों एक दूसरे को पॉकेट्स को खींच रहे हैं, है ना। ये बच्चा शोल्डर पे बैठा हुआ है और ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन के अंदर खेल रहे हैं। और ये फेंस है, ये फेंस है दीवार की तरह, और ये बीच का गैप है जिसमें से वो उनको देख रही है। तो व्हेन ग्रैंड मदर एंड हर मदर बोथ वर इन हॉस्पिटल, उसको अकेले रहना पड़ा। डे टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब रात आई तो दिक्कत हुई। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब उसको सुला रही थी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, एकदम से डर गई वो। और वो कहती है व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, अगर मुझे बुरा सपना आया तो मेरा क्या होगा। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, दुस्सपने आते हैं। देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और मेरी दादी जो है ना अपने बेड में लेके मुझे सुलाती हैं। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी, मैं अंधेरे में नहीं सो सकती, मुझे बहुत आवाज़ें सुनाई देती हैं। विस्परी मतलब फुसफुसाने की आवाज़, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने कहा कि जाओ सो जाओ, और उसकी जो सॉक्स थी वो भी उसने एलिस ने कुक ने निकाल दी। एंड डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाना नहीं है। वेक अप योर पुअर पा, यानी चिल्ला के अपने पिताजी को जगाना मत, बेचारे पिताजी को जगाना मत, क्योंकि थक हार के सो रहे होंगे। बट द सेम ओल्ड नेटमेयर केम, सो गई, वही सपना आया, बुरा सपना। सपने में क्या देखा उसने, द बूचर यानी कसाई विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक रस्सी और नाइफ लेके, हु केम नियर एंड नियर, उसके बिल्कुल पास आ रहा है वो धीरे धीरे। स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, उनके चेहरे पे वो एक स्माइल है, ड्रेडफुल मतलब खतरनाक, एक उसके चेहरे पे स्माइल है। वाइल शी कुड नॉट मूव नहीं कर सकती, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल स्टैंड स्टिल होता है वहीं के रिजिड हो जाना, अकड़ जाना एक तरीके से, वो भाग भी नहीं पा रही है। क्राइंग आउट, जोर से चिल्लाती है वो, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो कांप रही थी, कांपते कांपते जब वो उठी तो देखा पिताजी बिसाइड मतलब पास में, बेड के पास में थे। ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल थी जली हुई। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, पिताजी ने पूछा। ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए, मैं तो दादी के पास होंगी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझाया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी गोद में लिया बच्चे को। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, अपने बिग बेडरूम में ले आए, यानी जहाँ वो सोते थे वहाँ ले आए। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप का मतलब होता है उसको चादर उड़ाई, चारों तरफ से बिल्कुल कवर किया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके पास में वो खुद भी लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल,
Still with the butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him. हाफ अबाउट, हाफ अस्लीप से मतलब आधी उनिंदा, जब नींद में होते हैं, यानी केजिया द लिटिल गर्ल अब भी हाफ अस्लीप थी, नींद में थी. और स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, यानी अभी भी बूचर की स्माइल उसको अपने चारों तरफ लग रही थी, यानी डर उसका गया नहीं था, अभी भी वो डर, वो स्माइल उसके चारों तरफ लग रहा था, उस अभी भी वो स्माइल उसके आसपास है. इट सीम्ड शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम. क्रैप मतलब रेंग के, सरक के पिताजी के बिल्कुल पास चली गई. स्नगल्ड हर हेड, स्नगल्ड मतलब अपना सिर जो है ना बिल्कुल अंडर हिज आर्म छुपा दिया, यानी हल्की सी उसको वार्मथ मिले, क्योंकि बाहर सर्दी थी तो थोड़ी सी गर्मी मिले, तो उसने आर्म के नीचे, पिताजी की जो आर्म्स थी बगल के नीचे, हाथों के नीचे जो है ना, वो अपना सिर छुपाया. एंड टाइटली टू हिज शर्ट, बिल्कुल शर्ट के पास में शर्ट को पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब वो लेट गई तो अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिताजी के पास हो रही थी. शी ले स्टिल, बिल्कुल ले स्टिल मतलब चुपचाप बिना हिले डुले लेटी रही. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, फादर सेड. पिताजी ने कहा कि अपने पैरों को रब करो मेरी लेग से, अपने फीट को मेरी लेग से, टांगों से रब करो ताकि वो वार्म हो जाए, क्योंकि वो ठंडे थे. टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, पिताजी क्योंकि थके हुए थे, वो लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और बच्ची के चेहरे पे एक फीलिंग सी आ गई, है ना, फनी फीलिंग आ गई, अजीब सी फीलिंग आई. पुअर फादर, उसको लगा मेरे पिताजी बड़े बेचारे से हैं. नॉट सो बिग, उतने बिग नहीं है जितने वे सोचते, यानी वो सोचती थी कि पिताजी गर्दन इतनी बड़ी है, हाथ इतने बड़े हैं. क्यों सोचती थी? क्योंकि उसको पिताजी से डर लगता था. आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्यों है? क्योंकि पिताजी की तो देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं. देर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, पिताजी की यानी मेरी देखभाल करने के लिए पिताजी है, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो बहुत हार्ड हैं, उनकी बॉडी बहुत हार्ड है, ग्रैंड मदर से भी हार्ड है. रीज़न क्या है उसके पीछे? बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस नाइस यानी आज से पहले वही हार्डनेस उसको डराती थी, लेकिन आज वो उसको अच्छी लग रही है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्यों? क्योंकि उसको रोज़ काम करना होता है. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, यानी वो इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वो हार्डवर्क करते हैं. यही तो चीज़ है, हर किसी के पास इतना समय नहीं होता. अगर किसी के फादर इज़ इन अ ग्रेट जॉब तो वो अपने बच्चों को सारी खुशियाँ दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी के फादर बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो शायद वो उतना समय अपने बच्चों के लिए डिवोट नहीं कर पाते. लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दे आर अर्निंग फॉर देयर किड्स, वो अर्निंग केवल किड्स के लिए ही कर रहे हैं. शी स्टर्ड सडनली, सॉरी कहाँ थे हम यहाँ. शी हैड टॉर्न अप इज ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग, अब वो सोच रही थी कि पिताजी ने क्यों पिटा था. ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल जो उसकी स्पीच थी वो उसने जो ना टीयर कर देती, फाड़ देती. शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, हल्के से वो स्टर्ड मतलब हल्के से मूवमेंट करना है, थोड़ी सी हिली और हल्की सी लंबी सांस ली उसने. साय करना क्या होता है? जैसे हम लंबी सांस लेते हैं. व्हाट्स द मैटर, पिताजी ने पूछ लिया, वो जाग गई. क्या हुआ? अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया क्या? कोई और ड्रीम आ गया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके दिल के बिल्कुल पास है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ, इसकी धड़कन सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपका डियर फादर. तो ये जो लास्ट में आके बच्ची अपने फादर को डियर फादर कहती है और कहती है कि उसका हार्ट कितना बड़ा है, कितना बिग हार्ट है, एक्चुअली वो समझ जाती है कि फादर जो है उसके लिए कितना काम करते हैं. वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते, वो उतना उसकी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि पिताजी का रूटीन थोड़ा सा अलग है. तो उनकी पिटाई क्यों हुई थी? वाई केज वॉज बिटन बाय फादर, टुडे शी अंडरस्टूड. अर्लियर इट वॉज फियर, नाउ देर इज अंडरस्टैंडिंग. पिताजी का जो बिहेवियर था उससे पहले वो डरती थी, आज वो अपने पिताजी के बिहेवियर को समझती है. शी नो द रीजन्स बिहाइंड हिज बीइंग हार्ड, वो इतने हार्ड क्यों है उसके पीछे रीज़न है. यही एक लेसन है. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय कैथरीन
Mansfield. It's a nice story which gives you a great message. इसको आप रीड करेंगे. इसका एक असाइनमेंट जो है दैट विल बी सेंट टू यू. असाइनमेंट के अंदर वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, तो you will read this lesson and you will try to solve the questions. After you have done, we will again discuss the question answers and I will send the assignment also. इसको आप करेंगे क्योंकि ये आपके यूटी में यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है. So with these words I wind up our class today. Thank you for listening to me. Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice time. Thank you.